रेस्पिरेशन लेक्चर नंबर 7 कैलकुलेशन। बार बार बोलूंगी कैलकुलेशन, रेस्पिरेशन लेक्चर नंबर 7। इसमें हमको जो इंडिविजुअली हमने सीखा है, व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलिसिस, व्हाट हैपेंस इन एसिटाइलेशन एंड व्हाट हैपेंस इन टीसीए, ये टोटल सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस यहाँ पे सीखनी है। एंड एटीपी विच इज बायोलॉजिकल करेंसी, फाइनेंस है, रुपया है, तो एक एक रुपए का, एक एक एटीपी का हिसाब रखना पड़ेगा। ओके, सो डोंट बाय कंफ्यूजन, रिमेंबर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, व्हाट वी डिस्कस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। 1 glucose is completely broken down by the process of glycolysis। जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये टोटल ग्लाइकोलिसिस है, ईएमपी पाथवे। जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है इट इज अ स्टेप ऑफ एसिटाइलेशन, एंड जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है इट इज सेकंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज टीसी। अब ये इस प्रकार का डायग्राम मैंने क्यों उतारा? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी, 1 glucose is activated, then this is a step of cleavage, DHAP and PGL, they are isomers of each other. DHAP also isomerizes to PGL and ultimately gives you one molecule of pyruvic acid. Another PGL gives you another molecule of pyruvic acid. So glycolysis generates 2 pyruvic acid. You know glycolysis generates 2 PA, 2 ATP, 2 NADH. Right? Then 1 PA pyruvic acid undergo acetylation. So एक pyruvic acid के लिए acetylation एक बार होगा। एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, उसके लिए टीसीए एक बार होगा। सो सी, एक पायरुविक एसिड के लिए एक एसिटाइलेशन आपको देगा एक एसिटिल कोएंजाइम में, जिसके लिए बनेगा होगा एक टीसीए। सेम थिंग ट्रू फॉर अदर पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। दिस इज सेकंड पार्ट undergoing second step of acetylation, and this is second time TCA is occurring. So when I review the diagram, we can say for 1 glucose, the step of acetylation occurs twice. For 1 glucose, step of TCA occurs twice. For 1 PA, acetylation TCA occurs once. For 1 PGAL, acetylation TCA occurs once. So while solving MCQ, you need to be very careful कि ATP calculation जो पूछा है, okay, in MCQ if they are asking about ATP calculations, is it asked for 1 glucose or 1 PA or for 1 TCA? You need to read, and you should be very careful if they are asking how many ATP are synthesized by 1 TCA for 1 glucose or even for sucrose. Okay, right? So details, all these questions, answers you will get in the next part of the lecture. Be very careful. इसके आगे लेसन अब बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, आपको समझने में तकलीफ होगी। सो बार बार रटना है, मेरे साथ काम करना है, डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट एंड आस्क मी ईच एंड एवरी डाउट। Okay, so let us enter in difficult part of aerobic respiration, lecture number 7. Respiration, lecture number 7, total calculation part, completely logical, which is based on रट्टा। अगर रट्टा नहीं पता है आपको तो ये लॉजिक बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। Remember, simple method is रट्टा. After that, if you use logic, then you will not miss the mark. And as you know, respiration is a matter of ATP. So ATP के प्रोडक्शन के लिए हमको हर एक एनर्जी रिच बॉन्ड, नंबर ऑफ एटीपी, नंबर ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, कंज्यूम्ड, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस ऑफ योरसेल्फ। जैसे हम लाइफ में फाइनेंस डील करते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। So aerobic respiration for 1 glucose molecule is synthesizing this amount of ATP. So for that, calculations has to be very clear. Now all of you remember, for you this calculation will be a difficult part, but remember, if you would have understood the process
glycolysis individually and its calculation, then the process of acetylation and its calculation, TCA and its calculation. अगर आपने ये इंडिविजुअली अच्छे से समझ लिया है तो ये टेबल में मैं तीनों स्टेप ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइलेशन, टीसीए एक जगह लिख रही हूं. सो एवरीवन फॉलो द इंस्ट्रक्शन. रीड ग्लाइकोलिसिस and its calculation, which we have written at the bottom of glycolysis. Okay, what we wrote? Each glycolysis generate 2 PA, 2 ATP, 2 NADPH. Okay, so यही प्रोसेस हम डिटेल में चार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. इंडिविजुअली आपके क्लास वर्क में वो ऑलरेडी रिटन है, सो प्लीज डोंट बाय कंफ्यूजन. अगर इंडिविजुअली आपको ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस समझ में आई है तो वही ग्लाइकोलिसिस का एनर्जी रिलेटेड पार्ट हम ये चार्ट में लिखेंगे. राइट? सो सी एवरीवन, व्हाट इज द टाइटल? कैलकुलेशंस फॉर 1 ग्लूकोज बाय एरोबिक रेस्पिरेशन. In the process of aerobic respiration, 1 glucose is generating ATP. In which way they are synthesized, that we are calculating. Okay, so first step of aerobic respiration is glycolysis or EMP pathway. In glycolysis EMP pathway, we are considering these energy releasing steps and what is the number of the respective step in glycolysis. So पहला टेबल में चार्ट लिखा है मैंने, number of ATP by SLP, substrate level phosphorylation, direct ATP synthesis, phosphate bond energy. Second, number of NADH. एक ग्लूकोज के लिए एक ग्लाइकोलिसिस होता है तो एक ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बनेंगे? ग्लाइकोलिसिस में क्या FADH बनते हैं? So it is written number of FADH because we are considering overall view. Then total number of ATP produced. 1 SLP से द्वारा, NAD द्वारा, FAD द्वारा, इसका टोटल में हम इन्वेस्टमेंट कितना था ये कंसिडर नहीं करेंगे. एंड द लास्ट कॉलम इज नेट. Okay, because you know glycolysis involves 2 ATP consumption. So जो ATP यूज हुए और जो ATP बने, so investment minus total amount of ATP synthesized minus investment will be your profit. Okay, so चलो सब लोग क्लास वर्क फॉलो करेंगे. क्लास वर्क में आपने ग्लाइकोलिसिस लिखा है. Okay, follow each and every step. See, in glycolysis, how many ATP are synthesized by SLP, substrate level phosphorylation? Here, देखो पे ऑफ फेज में क्लीवेज के बाद, follow my instructions. Keep that diagram with you. पे ऑफ फेज में क्लीवेज के बाद 1,3-dipga converted to 3-PGA and PEPA converted to PA. These are the 2 steps where SLP occurs. These are the 2 steps where SLP, substrate level phosphorylation occur. Getting my point? समझ रहे हो? मिल रहा है ना डायग्राम में? Okay, now you know the ratio 1:1. You have 2 molecules of 1,3-dipga giving you 2 ATP, and in this process 2 molecules of 3-PGA are synthesized. 2 molecules of 1,3-dipga are dephosphorylated, energy-rich bond is broken, and released energy is synthesized for ATP formation. So this step occur for 2 molecules of 1,3-dipga generating 2 ATP. And second, 2 molecules of PEPA are converted to 2 molecules of PA. Here also exothermic reaction. Energy-rich bond are broken, energy is given out. ATP uses that released energy. ATP uses that released energy. And what you get? 2 ATP in the last step. So 2 plus 2. Total number of ATP formed by substrate level phosphorylation 4. Okay, then come to next one, number of NADH. Where NADH is formed? See, follow the diagram. 2 molecules of 3-PGAL converted to 2 molecules of 1,3-dipga. 2 molecules of 3-PGAL, 3-phosphoglyceraldehyde, converted to 2 molecules of 1,3-dipga. Here hydrogen is given out, that is oxidation occur, dehydrogenation, IP added. So it is a step of oxidative phosphorylation of PGAL. Oxidative phosphorylation of PGAL. So this step is generating 2 NADH. एक PGAL के लिए एक NADH, दूसरा PGAL के लिए दूसरा NADH. So
So this step is generating 2 NADH. Now you know 2 NADH is giving 3 ATP each. So we are multiplying it by 3 ATP. 2 NADH multiplied by 3 ATP, because you know NADH is like a check. It will go in ATS. ATS is the bank. In presence of oxygen, it will yield 3 ATP. So 2 NADH multiplied by 3. So here you will get 6 ATP. 3 ATP per NADH. ये कैलकुलेशन आपके अभी लर्न हो गया होगा. ओके, सो ये स्टेप में हमको 6 ATP मिलेंगे. देन नंबर ऑफ FADH इन ग्लाइकोलिसिस देखना तो गुड 0. ओके, सो टोटल देखो 4 और ये 6. सो टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड हियर 10 टोटल, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया है. व्हाट इज नेट? 10 minus 2, 8. What is 2? 2 ATP are used in the step of activation. So 2 ATP used for activation. समझ रहे हो? ओके, तो ये हो गया टोटल एक ग्लाइकोलिसिस का बैलेंस. लिख लो सब लोग अच्छे से. राइट डाउन द थिंग. समझ के लिखो, डायग्राम को देख देख के लिखो. चलो नेक्स्ट पार्ट हो गया. एक लिखना ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज कनेक्टेड टू TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, बाय अ स्टेप कॉल्ड एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन के अलग अलग नाम. स्टेप ऑफ एसिटाइलेशन, एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेप, गेटवे स्टेप, कनेक्टिंग लिंक. ये इंग्लिश वर्ड है, इसको कोई दूसरे मीनिंग नहीं है. ग्लाइकोलिसिस और TCA को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिंग लिंक. पायरुविक एसिड को एरोबिक रेस्पिरेशन में गेट से पास ऑन करने वाला गेटवे. राइट, सो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये गेट है, ये ओपन होता है. तो इट इज लिटरल मीनिंग. यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, कंफ्यूजन मत होना. ट्रांजिशन, एक फेज खत्म हो गई, दूसरी फेज शुरू हो रही है, तो बीच का ये ट्रांजिशन है. So no one will buy confusion. Stick to the meaning of the word, right? So I am writing here only one, acetylation, but we will revise acetylation, acetyl coenzyme formation, transition, gateway step, connecting link. Right? So here in acetylation, look at that diagram. What is the step of acetylation? Pyruvic acid is decarboxylated as well as dehydrogenated. Here NADH produced to form acetyl. Acetyl is activated to form acetyl coenzyme. यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, ना डायरेक्टली ATP बना ना FADH बना. Here we'll write down 0 ATP by SLP, substrate level phosphorylation से कुछ नहीं बना. Here 2 NADH, एक पायरुवेट के लिए एक NADH, दूसरे पायरुविक एसिड पायरुवेट के लिए दूसरा NADH. Again here I am multiplying it by 3 ATP because 1 NADH generates 3 ATP via ATS. So here 2 NADH multiplied by 3. So this step is giving 6 glucose, 6 ATP, 6 ATP per glucose. Acetylation की step एक ग्लूकोज के लिए 2 बार होगी, राइट? और 2 बार अगर होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 NADH बनेंगे. ओके, सो FADH produced will be 0. Total ATP 6, right? And net again 6.
क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। वंस पे ऑफ फेज स्टार्टेड, एक बार ग्लूकोज प्रॉपरली एक्टिवेट हो गया तो बाद में कोई यूटिलाइजेशन एक्टिवेशन पहली बार हो गया, बाद में कोई बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नेट और प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट में कुछ अंतर नहीं है। टोटल और नेट में अंतर कहाँ पे है? ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी एक्टिवेशन के लिए लगते हैं, एसिटाइलेशन में और टीसी में एक्टिवेशन है नहीं, तो एटीपी का यूटिलाइजेशन है नहीं। तो जितना भी आप कमाओगे, जितने भी एनर्जी एसिटाइलेशन और टीसीए में रिलीज होगी, वो पूरा का पूरा फायदा ही है, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट इज अगेन गिविंग 3 एटीपी। चलो नेक्स्ट स्टेप is a TCA, tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle, Krebs cycle, बराबर। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हर साइकिल का इंडिविजुअल कैलकुलेशन फिर से आपके क्लास वर्क में निकालो। क्लास वर्क टीसीए देखो, टीसीए के कैलकुलेशन मैंने आपको लिखवा के दिए हैं। ओके, सो वही कैलकुलेशन फॉलो करने हैं। डायग्राम में फिर से एक बार गिनना है। Okay, calculate how many ATP, GTP are directly produced. So here 1 GTP, that is ATP. 1 GTP, that is ATP. बाय SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कहाँ पे बन रहा है? देखो, सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट। वेरी गुड। ओके, वो टीसीए देख के भी आपको अंदाजा आना चाहिए कि झट से लोकेशन आपको ट्रेस करते आनी चाहिए, बराबर। सेकेंड वन, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन TCA, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन TCA। सो कैलकुलेट, देयर आर 3 NADH produced per molecule of acetyl, per molecule of acetyl coenzyme A। बात को समझ रहे हो क्या? एक TCA में 3 NADH बनते हैं, 2 TCA में 6 बनेंगे, तो यहां पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। Why it is so? सब लोग ये बात समझ रहे हैं क्या? अभी हमने क्या सीखा? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए TCA 2 बार होगा, 2 पायरुविक एसिड के लिए TCA 2 बार होगा। समझ रहे हो? राइट? ओके, सो सी, दिस इज प्रोड्यूसिंग 2 times TCA is occurring. 1 TCA generates 3 NADH. So 2 multiplied by 3. So यहाँ पे आ गए टोटल 6 NADH per glucose. 6 NADH per glucose. Okay? अब एक NADH आपको 3 ATP देता है, तो पता है यहाँ पे आपको टोटल मिलेंगे 6 3 जा, I'll write down in detail, 3 ATP multiplied by 6 NADH, so equal to 6 3 जा 18 ATP, बराबर। ओके, या फिर हम ऐसा सिंपल फॉर्म में, ये ऐसा भी बराबर है, अगर सिंपल फॉर्म में हमको लिखना है तो विल राइट डाउन 3 NADH पर TCA, एक TCA से 3 NADH। I can write down here, but for 1 glucose TCA runs twice, but for 1 glucose TCA runs twice, right? So this is per TCA, एक TCA के लिए 3 NADH बनते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस होगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 बार एसिटाइलेशन होगा। सेम थिंग ट्रू, द प्रोसेस अकर्स
twice, 2 times for 1 glucose. बराबर? Okay, so here I am writing down एक पायरुविक एसिड के लिए 1 TCA, दूसरे पायरुविक एसिड के लिए 2 TCA. ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय फाइनली 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा. सो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे और अंत में मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलेंगे. ठीक है, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको और एक डायग्राम उतार के बताऊंगी, पहले समझ लो. ओके, सो सी नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस्ड. इट विल बी प्रोड्यूसिंग 1 FADH, राइट. एंड टोटल नंबर ऑफ ATP हमने कैलकुलेट करके देखा था. बोलो, इट इज जनरेटिंग 12 ATP. कैसे कैलकुलेट किया था? 3 NADH, 3 ATP each, so 3 3s are 9. Okay, 9 plus 1 GTP, एक TCA के लिए 1 GTP, so 9 plus 1 10, और एक FADH मतलब 2 ATP, so 10 plus 2, एक TCA हमको 12 ATP 1 डजन देता है. देखो आपने लिखा है, 1 TCA जनरेट्स 12 ATP. Okay, 2 TCA, so here I can write down 2 TCA produces 24 ATP. बराबर. यहाँ पे नेट और टोटल में कोई अंतर नहीं है. चलो तो एक ग्लूकोज का टोटल करते हैं. सी, नेट के लिए 8 plus 6, what is that? 14. 14 plus 24. Here you are getting 38 ATP. You are getting 38 ATP. समझ रहे हो? अच्छे से पक्का कैलकुलेशन है. और एक डायग्राम दूंगी और अच्छे से समझ में आएगा. प्लीज राइट डाउन. की टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. इंडिविजुअली आपके क्लास वर्क में हमने ग्लाइकोलिसिस लिखा है, एसिटाइलेशन लिखा है, TCA लिखा है. वही कैलकुलेशन मैंने चार्ट फॉर्म में लिखे हैं. बस एक चीज ध्यान में रखेंगे. व्हाट इज दैट? एक ग्लूकोज के लिए एसिटाइलेशन और TCA 2 बार होता है. Complete your writing. चलो, डन. So remember, 1 glucose perform 1 aerobic respiration. 1 glucose when perform aerobic respiration, it perform glycolysis once, acetylation twice, TCA twice. एक ग्लूकोज के लिए ग्लाइकोलिसिस 1 बार, एसिटाइलेशन 2 बार और TCA 2 बार होगा. ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 ATP, नेट 8, क्योंकि 2 एक्टिवेशन के लिए. एक एसिटाइलेशन देगा 3 ATP. ओके, हियर आई कैन राइट डाउन फॉर 1 एसिटाइलेशन, राइट. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे हम फॉर 1 एसिटाइलेशन. सो यहाँ पे 2 multiplied by 3, एक ही बात लिख रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट इज 6 ATP. ओके, एक ग्लूकोज के लिए 2 बार TCA, एक ग्लूकोज के लिए 2 बार TCA, एक ग्लूकोज के लिए 2 बार TCA, 2 बार एसिटाइलेशन. ठीक है, तो ये काम ध्यान में रखना है. जैसे मैंने एक सिंपल बॉटम लाइन यहाँ पे लिख दी, हमेशा ध्यान में रखो.
एक ग्लूकोज के लिए ग्लाइकोलिसिस वंस, एक ग्लूकोज के एसिटाइलेशन ट्वाइस और एक ग्लूकोज के लिए TCA ट्वाइस. So what I wrote, acetylation TCA occurs twice for one glucose. बराबर. ओके, सो दिस इज फाइनल चार्ट. मैंने पर्पसफुली अलग अलग फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के बताया. कंफ्यूजन है तो अभी समझ लो. ओके, चलो फिर से एक बार देखते हैं. एक एसिटाइलेशन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन के स्टेप में कुछ नहीं होता, तो 0. एक एसिटाइलेशन में एक NADH बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 ATP. एक एसिटाइलेशन में व्हाट आई रोट, इट इज 1 एसिटाइलेशन जनरेट 1 ATP. बराबर. FADH यहाँ पे नहीं बनता है, तो एक एसिटाइलेशन में हमको मिलेंगे 3 ATP. लेकिन एक ग्लूकोज के लिए एसिटाइलेशन 2 बार होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. एसिटाइलेशन की स्टेप एक ग्लूकोज के लिए 6 ATP देंगी. एसिटाइलेशन की स्टेप एक पायरुविक एसिड के लिए 3 ATP देंगी. आई रिपीट, step of acetylation occurs once for one pyruvic acid generating 1 NADH, that is 3 ATP. Step of acetylation occurs twice for one glucose. So एक ग्लूकोज के लिए 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 बार एसिटाइलेशन, 2 एसिटाइलेशन में 2 NADH. तो एसिटाइलेशन की स्टेप एक ग्लूकोज के लिए यहाँ पे 2 multiplied by 3 ATP देंगी. Right? Okay. Then TCA. 1 TCA generate 1 GTP, 1 ATP. Okay. 1 TCA generates 3 NADH per TCA. 1 FADH per TCA. Okay. तो एक NADH मतलब 3 ATP आप जानते हो, एक FADH मतलब 2 ATP. So एक TCA का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3 3s are 9 plus 1 10 plus 2 12 ATP for 1 TCA. But for one glucose TCA occurs twice. बराबर. तो यहाँ पे 2 TCA आपको देंगे 24 ATP. So एक ग्लूकोज अगर पूरा एरोबिकली ब्रेकडाउन होता है तो 8 plus 6 plus 24 38 ATP are produced. 38 ATP are produced. Getting the point? ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि कैलकुलेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ओके, और अगर समझ से अच्छे से काम करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कभी भी कंफ्यूजन हो तो पहले इंडिविजुअली देख लो, ग्लाइकोलिसिस इंडिविजुअली, एसिटाइलेशन इंडिविजुअली, TCA इंडिविजुअली, वो देख लो एंड देन गो थ्रू दिस चार्ट. Okay, we'll solve problems on this calculation.